السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے اور اس دنیا کے سارے انسانوں کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ، تنبیہ، چیتاونی اور ہماری غفلت، اس ٹائٹل کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ وارننگز، وہ تنبیہیں اور وہ چیتاونیاں پیش کی جائیں گی جن کے بارے میں ہم یا تو انجان ہیں یا واقف ہیں لیکن ان کا اثر نہیں لیتے، جس کی وجہ سے اس اثر نہ لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے دین بدنام ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور چیزوں میں دیندار دکھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ایک آدمی کو لوگ دیندار کہنے لگتے ہیں، لیکن اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کے مطابق گزر رہی ہے، اس کا پتہ گھر والوں کو ہوتا ہے، ملنے جلنے والوں کو ہوتا ہے، اور لین دین کرنے والوں کو، جن کے ہم سے اور آپ سے معاملات ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق چل رہی ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، اور محلے میں، خاندان میں، ملنے جلنے والوں میں اس کی جھلک دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس جھلک کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ صرف مسجد تک محدود ہے، معاملہ روزے رکھنے تک محدود ہے، معاملہ حج پر حج کرنے، عمرے پر عمرے کرنے تک محدود ہے، معاملہ اس حد تک ہے اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اور ہم اس سے بالکل بے پرواہ ہیں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے خود گھر والے ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے، محلے والے کیا کہہ رہے، ملنے جلنے والے کیا کہہ رہے، جن لوگوں کا ہم سے معاملاتی سابقہ ہے، لین دین ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے، اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کو بدنام کرنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر دین کے بارے میں تنفر، نفرت اور چڑ پیدا کرنے کا وہ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج اس وقت 2 حدیثیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی حدیث کے مطابق ہم یہ سوال کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص درہم و دینار کا، مال و زر کا، سونے چاندی کا، جائیداد کا بھی غلام بن جائے، ان کی غلامی کرے، اور ان کی غلامی سے ہٹ کر وہ نہ اللہ کی آواز سنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ اور تنبیہ پر کان دھرے؟ کیا ہم نے دیکھا؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ اسے سن کر ہو سکتا ہے آپ ہنس رہے ہوں کہ ہم نے بھی کیسا سوال کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اور سب سے پہلے خود اپنے کو سامنے رکھ کر کہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم، اگر اللہ کا ہم پر خاص رحم و کرم نہیں ہے تو ہم اس مال و زر کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے لیے رشتے پامال کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے سگے رشتوں کا خون کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے بہن کو بہن نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں، ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ بس ہمیں اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی چلتر ہے اور دنیا داری کی لائن سے چالاکی ہے تو ہم اپنے حق کے ساتھ دوسروں کا حق بھی ہڑپنا اپنی خوبی، اپنا کمال، اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ تو اس طرز عمل کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے پہلی حدیث میں، حرص، لالچ اور دنیا پرستی کی مذمت میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ
इन उअतिया रदिया व इन लम युअता सखिता। सहीह अल-बुखारी हदीस नंबर 2887। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो जाए दीनार का बंदा, हलाक हो जाए दिरहम का बंदा, हलाक हो जाए कमीस का बंदा, लिबास का बंदा। अगर दिया जाए तो राज़ी हो और अगर न दिया जाए तो नाराज़ हो। ये हदीस दुनिया की मोहब्बत, माल परस्ती और मादी ग़ुलामी की मज़म्मत में नहायत पुरअसर है, नहायत पुरअसर है। अब्दुद्दीनार यानी जो शख्स दीनार व दिरहम का, माल व दौलत का ऐसा पुजारी बन जाए कि उसकी रज़ा या नाराज़ी, खुशी या गम का दारो मदार सिर्फ दुनियावी माल व असबाब पर हो, वो हो उसके पास तो वो खुश हो, और महज कम होने का अंदेशा उसको परेशान कर दे, तो हकीकत में ऐसा शख्स अल्लाह का बंदा नहीं, हकीकत में वो माल का बंदा है, माल का ग़ुलाम है। तईसा का मतलब है हलाकत में पड़े, तबाह हो जाए। एक बद्दुआ की शक्ल में सख्त तंबीह है ऐसे हर उस शख्स के लिए जो आँख बंद करके और कान बंद करके बस माल व ज़र के पीछे भागा चला जा रहा हो और ना अल्लाह की सुन रहा हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग और तंबीह का कोई असर ले रहा हो, और ना अहले हक़ की आवाज़ उसको सुनाई दे रही हो कि भैया ठीक है भाग रहे हो तो अपने ही माल लेकर भागो, अपने ही माल के पीछे भागो, जिसका जिसका लिए दिए हो वो तो उसको वापस लौटा दो। याद रखें, दुनिया हाथ में हो तो खैर है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दुनिया दिल में घुस जाए, दिल में उतर जाए तो फिर बर्बादी है। दूसरी हदीस, अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मनिल मुफ़लिस क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मताअ फ़क़ाल इन्नल मुफ़लिस मिन उम्मती याअती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याअती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار। صحیح مسلم 2581 حدیث نمبر۔ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, हम में मुफलिस वो होता है, दीवालिया वो होता है, बैंकरप्ट वो होता है जिसके पास न दिरहम हो न सामान हो, कुछ न हो, खाली हाथ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, यानी हकीकी मुफलिस, क्योंकि असल एतबार एंड का होता है, एंड का। जैसे क्रिकेट का मैच, टीम कितनी बढ़िया खेल रही हो, लेकिन अगर आखिरी ओवर्स में जो करना है वो न करे तो सब बर्बाद, सब बेकार। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर में जो करना हो न कर पाए, आखिरी गेंद पर जो करना हो न कर पाए तो सब बेकार, सब बर्बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा। नमाजें होंगी, ज़कात होगी, रोज़ा होगा, यानी उसने दुनिया में नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात अदा की होगी, मगर साथ ही उसने किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाई, किसी का माल खाया, किसी का खून बहाया और किसी को मारा। बस इन सारे मज़लूमों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। ये सारे मज़लूम आएंगे, अल्लाह ताला जब इंसाफ करेंगे तो हुक्म देंगे कि भाई ठीक है कि इन लोगों की शिकायत दुरुस्त है, बजा है, और इसने इन सब के साथ नाइंसाफ़ी का मामला किया और हक़ अदा नहीं किया, तो लिहाजा अब यहाँ पर इसकी नमाज, इसके रोज़े, इसकी ज़कात, जो इसके पास इबादत की सूरत में नेकियां होंगी वो चुकाई जाएं। बस इन मज़लूमों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। अगर नेकियां ख़त्म हो गईं और हिसाब बाकी रहा, कुछ अभी भी खड़े हैं, हाँ अभी उनका हिसाब चुकता नहीं हुआ,
اور ان کی नेकियां, इन जनाब की नेकियां ख़त्म हो गई तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, उन लोगों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे। इस तरह मामला निपटाया जाएगा, चुकता किया जाएगा और फिर इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये हदीस हमें इबादत के साथ हुकूकुल इबाद की अहमियत सिखाती है। रोज़ा, नमाज, ज़कात होने के बावजूद जिसे हम दीन समझते हैं और इसी में हज उम्रा जोड़ दीजिए तो ये 5 चीज़ें अगर हम अदा कर रहे हैं तो हम अपने को दीनदार समझते हैं, और अगर दिल के अंदर, दिमाग में, नीयत में खुलूस नहीं है तो साथ ही साथ ये चाहत भी होती है कि लोग भी हमें दीनदार समझें। तो आप देखें उन्हीं चीज़ों का तज़किरा हुआ है जिनमें हम मशगूल होकर ख़ुद को दीनदार समझते हैं और दीनदार कहलाना पसंद करते हैं। रोज़ा, नमाज, ज़कात होने के बावजूद अगर ज़बान, हाथ या माल से किसी की हक़ तलफ़ी हुई तो अंजाम जहन्नम है। नेकियां वहाँ करेंसी बनेंगी और मज़लूम जुल्म की कीमत इन्हीं करेंसी की सूरत में वसूल करेगा। ये अदालत इलाही का उसूल अदल है, ये अल्लाह की अदालत का, इंसाफ का उसूल है। वहाँ न माल काम आएगा ना नसब, सिर्फ आमाल का पल्ला वज़नी होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तराजू नेकी की तरफ झुका हुआ है तो कामयाब, तराजू अगर जुल्म ज़्यादती की तरफ झुका हुआ है, हक़ तलफ़ी की तरफ झुका हुआ है, गसब करने और हक़ मारने की तरफ झुका हुआ है तो फिर हलाकत व बर्बादी है। आज सोच लीजिए हम किसके ग़ुलाम हैं, माल व दौलत के, ख्वाहिशात के या रब्बुल आलमीन के और उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और क्या हमने किसी का हक़ तो नहीं दबाया हुआ है? कहीं हम नेकियों के बावजूद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और उम्रों के बावजूद कल आखिरत में हम मुफलिस तो नहीं निकलेंगे? ये सोचना, बार बार सोचना, रोज़ाना सोचना, सोने से पहले सोचना, सोकर उठने के बाद सोचना हमारा और आपका फ़र्ज़ है, फरीज़ा है, ज़िम्मेदारी है। क्योंकि एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा भयानक अंजाम फरमाया हुआ है और वो बड़ी भयानक तंबीह है, बड़ी भयानक वार्निंग और चेतावनी है जो आएगी इंशाअल्लाह तफसील से, जिसमें आपने फरमाया ही यही है कि एक मुसलमान शाम होते होते अपने दीन से हाथ धो लेगा और दूसरा सुबह होते होते धो लेगा, क्योंकि वो दीन दुनिया के बदले में बेच रहा होगा, दीन बेच रहा होगा, दुनिया ले रहा होगा। और इस उम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश दुनिया के उस हिस्से में है और दुनिया की उस शक्ल में है जिसे माल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, फितनतु उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। अब हम सब देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम अहले हुकूक के हक़ अदा कर रहे हैं या हम सिर्फ़ अपने को देख रहे हैं और चाहत ये है कि कितना हम अपने लिए समेट सकें और बाकी सबको उनके हुकूक से दूर ढकेल सकें, किसी को कुछ देना न पड़े, जो सब हमें मिल जाए। तो इस पर निगाह डालें, इसकी फ़िक्र करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, ख़ुद को मुसलमान और ईमान वाला कहते हैं, तो फिर एक बार अपने अंदर झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबीह, इस वार्निंग, इस चेतावनी के आईने में अपने आप को ज़रूर देखें और अगर मुकम्मल न पाएँ, अधूरा पाएँ, गड़बड़ पाएँ तो फिर वो गड़बड़ी वक्त रहते ठीक कर लें, उस दिन का इंतज़ार न करें इस बहलावे और इस धोखे का शिकार होकर कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, वो आखिर में माफ़ कर देंगे। ठीक है, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अगर हमारा ईमान सच्चा और पक्का है तो माफ़ करेंगे, लेकिन इतनी तो नहीं दीन ने सिखाया है जो हमने इतनी बात पकड़ ली है। ठुकाई पिटाई भी तो शामिल है, जहन्नम में अपने अमाल की सज़ा भुगतने के लिए जाना भी शामिल है। जब हम माचिस की तीली की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, मोमबत्ती की लौ बर्दाश्त नहीं कर सकते, गैस की लपटों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर
اس کو بھی تو سوچیں ہم سب۔ بس اس کلپ میں اتنا ہی۔ اللہ کرے یہ پیغام ہمارے آپ کے سب کے دل کو لگے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی وارننگ ہے، آپ کی تنبیہ ہے، آپ کی چیتاونی ہے۔ اس لیے اپنے دل سے لگائیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں، اسے پھیلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔